Hello dear friends, let's continue with the concept of friction. मैंने मेरे लास्ट लेक्चर में द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ इंक्लाइन एंड द कंसेप्ट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन वह मैंने समझा दिया था और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम, दोनों एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ इंक्लाइन से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम करवाया था और एंगल ऑफ फ्रिक्शन से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम करवाया था. लेट अस कंटिन्यू विथ अनदर कंसेप्ट. मैंने लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताए. लॉ ऑफ फ्रिक्शन में मैंने सबसे पहले बताया था द फर्स्ट लॉ सेज that there are 4 points which describes the friction and the law associated with it. The first says that frictional force is directly proportional to normal reaction. The second law says that the frictional force act opposite to relative motion or opposite to impending motion. And the third point says that frictional force is independent of the surface area of contact. And the fourth law, the fourth point says that frictional force depends on the nature of material in the contact. And it depends on whether there is some greasing done or where there is some ऑयलिंग डन. दोनों मटेरियल जो कांटेक्ट में उनके नेचर पर डिपेंड करेगा, द नेचर ऑफ कांटेक्ट. मैं इन्हीं चारों लॉ को इलस्ट्रेट करते हुए कुछ एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल्स इलस्ट्रेट करता हूं. देखिए, वी हैव गॉट अ टेबल फिक्स्ड विथ अ frictionless pulley, and on this table we have got a block. This block is having mass m. This is a frictionful table, and the frictionful contact, and this mass is tied with a rope, and here we have got a pan kept with some weight on it, and it have got mass of small m. And in this situation it just starts moving. Just move. Now in this situation what we'll say? हम कहते हैं earth gravitational pull, due to earth gravitational pull we'll have gravitational force mg in downward direction, and we'll have normal reaction offered by the table in upward direction. And this normal reaction would be equal to mg. इधर हम कहेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम यदि अलग से ड्रॉ कर लें तो यह एक वेइंग पैन है kept with mass of small m. The mass of pan and the weight kept on it, it have got a total mass of small m. The gravitational force is mg, and here we'll have the tension T, and we'll say this tension T would be equal to mg. और इसका हम यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो this thread is pulling it with a force of T. The tension T would remain same in the thread throughout its length, and it just move with acceleration 0 acceleration.
इसका मतलब इस ब्लॉक को यह टेबल एक रेजिस्टेंस, एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर कर रही है, एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स. mg, small mg, this is gravitational force acting in downward direction, और यह मास जीरो एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है. It means there is a tension T in upward direction, tension T equal to mg. टेंशन T थ्रेड में थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहेगा. टेंशन T से यह थ्रेड इस ब्लॉक को आगे की तरफ खींच रहा है, एंड सिंस द थ्रेड इज पुलिंग दिस ब्लॉक in this direction with tension T, table is offering a opposing force, a resisting force, a frictional force in backward direction. Now this complete situation illustrates that, it tells us that frictional force act opposite to impending motion or relative motion. It implies that frictional force act opposite to impending motion or relative motion. This experiment illustrates the second point of our law of friction. अब मैं क्या करता हूं, मैं इसी टेबल पर, यह मैंने मास m रखा था, इसके ऊपर में एक और मास m रख देता हूं, आइडेंटिकल मास m kept over this block, and now both these masses which are kept one over the another is tied to this span. अब इसे इस स्पैन से बांध देता हूं. Now the situation is, we have got gravitational force of 2 mg and we have got normal reaction n dash, where normal reaction n dash is equal to 2 mg. इधर हम एक बात और कंक्लूड करेंगे, दिस T which is equal to mg must be also equal to Fr max. Which is equal to mu n. मैं उस चीज को इधर अप्लाई करने जा रहा हूं इनफैक्ट. अब सबसे पहले we have got gravitational force of 2 mg in downward direction, normal reaction n dash, which would be equal to 2 mg. Now in order to just move it down, हमें इधर पहले जो भी कुछ मास रखा था, हमें कुछ और मास इधर रखना होगा, and one would observe that this time we would need the mass of 2m, and in this situation once again the frictional force would act in opposite direction, Fr max, and this Fr max would be equal to mu into n dash, or this would be equal to mu into 2 mg. पहले यह था mu इंटू n, पहले यह mu इंटू n और mu इंटू
mg, और इस बार FR max होगा म्यू इंटू 2mg, और इधर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं. स्मॉल 2mg, here tension T dash, this tension T dash is equal to 2mg and this is equal to FR max, or this is equal to 2 into mu into capital mg. Observe that when normal reaction get doubled, the maximum frictional force also get doubled. Normal reaction जब डबल हुआ तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स भी डबल हुआ, और उसको ड्रैग करने के लिए जो टेंशन T डैश चाहिए, टेंशन T चाहिए, वह भी डबल हुआ. पहले टेंशन T इक्वल टू mg से ड्रैग हो रहा था, अब टेंशन T इक्वल टू 2mg हो गया है. मीन्स इट इंप्लाई दैट मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to normal reaction, is directly proportional to the normal reaction. इधर जो फ्रिक्शनल फोर्स था वह म्यू एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, दैट इज इक्वल टू mg, और इधर जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है वह म्यू एन डैश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स म्यू mg और 2 टाइम्स स्मॉल mg. कंक्लूड दिस. अब हम तीसरा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं. हम क्या करते हैं, इसी टेबल पर हमने पहले यह मास m रखा और इसको इस तरह से टाई कर रखा था. नाउ व्हाट वी डू, हम इधर एक थ्रेड से पहले हमने आइडेंटिकल मास इसके ऊपर रखा था, अब हम आइडेंटिकल मास इसके इस तरह से टाई कर देते हैं और इधर हम इसी तरह से एक टैग बांध देते हैं. इस सिचुएशन में और सिचुएशन में फर्क क्या हुआ है? नॉर्मल रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी भी इधर mg और mg है और नॉर्मल रिएक्शन nn और टोटल नॉर्मल रिएक्शन n dash is equal to 2n is equal to 2mg. In this situation there is no difference in the normal reaction. Normal reaction तो बिल्कुल वही का वही है. इधर नॉर्मल रिएक्शन n dash 2mg, इधर भी टोटल नॉर्मल रिएक्शन n dash 2mg. Now what is the difference? The difference is in the area of contact. इस जगह पर जो फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है दैट इज एक्टिंग ओवर दिस एरिया ऑफ कांटेक्ट, और इस जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी लग रहा है और इस एरिया ऑफ कांटेक्ट पर भी लग रहा है. एरिया ऑफ कांटेक्ट इज डबल्ड. अब जब एरिया ऑफ कांटेक्ट डबल हो गया है तो हम यह बात देखते हैं कि अब इसे जस्ट मूव करवाने के लिए क्या सिचुएशन होगी. विल फाइंड कि हमने उतना ही वेट इधर रखना है जितना वेट
पहले इधर रखा गया था। अभी भी जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2mg, टेंशन T डैश इज इक्वल टू 2mg। इन दोनों को जस्ट मूव करवाने के लिए जो Fr मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू T डैश। Fr मैक्सिमम is equal to T dash and that is 2mg. No variation in Fr max. What do this imply? This imply that maximum available frictional force or kinetic frictional force is independent of area of contact. इसका मतलब है एरिया ऑफ कांटेक्ट डबल भी हो गया तब भी वहां पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, तब भी वहां पर मिलने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, वह उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करा, न कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर। इट इंप्लाई दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। मैक्सिमम अवेलेबल frictional force or kinetic frictional force, kinetic frictional force is independent of area of contact। यह एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करेगी, यह पूरी तरह से सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगी। अब जो चौथा पॉइंट है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कांटेक्ट। इसका क्या मतलब है? हम कहेंगे कि यदि यह टेबल बदल दी जाए, पहले जो टेबल थी वह वुडन टेबल थी, उस वुडन टेबल के ऊपर पॉलिशिंग कर दी जाए। नाउ इफ वी पॉलिश द सरफेस ऑफ द टेबल, हम उस टेबल को यदि चिकना कर दे तो we would observe that the required weight to move this block would decrease. It means the maximum available frictional force would decrease. इस सिचुएशन में भी ऐसी होएगा और उसी तरीके से इस सिचुएशन में भी यदि हम टेबल को पॉलिश कर दें और दोनों ब्लॉक को रख दें तो यह जो मासेस है जो इसको मूव करवाने के लिए हमें चाहिए, जस्ट मूव करवाने के लिए जीरो एक्सीलरेशन के साथ, इधर हर जगह पर एक्सीलरेशन इक्वल टू जीरो रखा जा रहा है, जस्ट मूव करवाया जा रहा है, जस्ट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इस जगह पर यदि पॉलिशिंग कर दिया जाए तो यह मासेस 2m डिक्रीज हो जाएगा, टेंशन T डैश डिक्रीज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। इस जगह पर यदि टेबल को पॉलिश कर दिया जाए तो टेबल को पॉलिश कर देने से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। टेबल को पॉलिश कर देने से क्या होगा? इनफैक्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। हर जगह पर ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। बिसाइड पॉलिशिंग वी कैन ऑल्सो पुट ऑयल, हम यदि इधर पानी डाल दे या ऑयल डाल दे या फिर हम इधर ग्रीस लगा दे तो उससे भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगा, उससे भी म्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, उससे भी फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा। ऑयल लगाने से या ग्रीस लगाने से होता क्या होगा? एक सिंपल फिनोमेना, जो रफ सरफेस है, जो टेबल का इस तरह का जो रफ सरफेस है जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है, उस जगह पर इस तरह से ऑयल और ग्रीस कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा और इस टेबल से मिलने वाले रेजिस्टेंस को, इससे मिलने वाले अपोजिशन को कम कर देगा और उसको स्मूथ बनाएगा और इस तरह से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करके वहां पर मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर देगा। नाउ ऑल दिस एक्सपेरिमेंट वुड डेमोन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। जो लॉ ऑफ फ्रिक्शन में हमने चारों बातें देखी हैं वह सारे हमें इन एक्सपेरिमेंट से समझ में आ जाता है।
इसी समय नोट डाउन कीजिए। मैं अब ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट फ्रिक्शन को लेकर बताऊंगा और उसके बाद में प्रॉब्लम्स के द्वारा फ्रिक्शन चैप्टर को फर्दर इलस्ट्रेट करूंगा। तरह तरह के हम कुछ 10-12 प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे फ्रिक्शन चैप्टर को सीखेंगे। इसे नोट डाउन करो।